extremely concerned about the shocking occurrence of gang rape which took place in Delhi on 16th December 12th. All the 6 accused have been arrested by the police. The last one yesterday from Jharkhand. The sufficient evidence has been gathered to prosecute them, and the charge sheet will be filed very shortly. The government is requesting the court for a speedy trial through a fast-track court on day-to-day basis. A prompt action has also been taken against the transporters whose bus was used for this heinous crime, and permits for all the 9 vehicles owned by this transporter have been cancelled. The victim is being provided with the best medical care. The government will do whatever is necessary for her recovery. Her condition is being monitored very closely. She has given a statement about the crime to an executive magistrate last night. The government shares the widespread concern and support that has been expressed throughout the society for the girl who has so suffered. The government also respects the right of legitimate protest. At the same time, there is need to exercise calm at this juncture and for everyone to work together to improve the safety and security environment. On this part, the government is committed to ensuring the safety of women in the capital as well as in the rest of the country. The number of steps have been the following. 1. Improve the public transport system by increasing the number of buses at night. 2. The installation of GPS on all public transport vehicles to ensure that they do not stray from their scheduled routes. 3. Ensuring that all personnel deployed on the public transport carry identification badges and are verified. 4th, a proactive and enhanced patrolling by police vans and motorcycles along the routes taken by families and the women returning last at night from the entertainment hubs and workplaces. To ensure a strong law to deal with crime of this nature, the government will take immediate steps for the amendment of the criminal law for enhanced and more effective punishment in the rarest of the rare cases of the sexual assault of such as this. The government will set up a commission of inquiry under the Commission of Inquiry Act 1952 to review the responses of this shocking crime and to suggest the measures to improve the safety and security of the women in the capital. And I appeal through this media to all those we have come to support this agitation to withdraw, as you have shown the solidarity on this. मैं आपसे विनती करता हूं कि देशवासियों हर जगह अपने देश में ये घटना के बारे में आपने जो क्रोश दिखाया है, गवर्नमेंट इसमें गंभीर है
और मैंने दोनों सदनों में भी ये सब कुछ बता दिया है, लोकसभा में बताया है, राज्यसभा में बताया है, और कई डेलीगेट्स मुझे मिले, अभी अभी यहां आ रहा था तभी भी मिले हैं डेलीगेट्स। उनसे भी मैंने विनती की है कि आप कृपा करके अपने घर जाइए, और सरकार इसमें बहुत गंभीरता से देख रही है। हमने इतना ही नहीं, लेकिन होम सेक्रेटरी को बोला है कि जो भी इस घटना में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो लोगों ने काम नहीं किया है, उनको पुलिस को सस्पेंड किया जाए। मेरे ख्याल से 4-5 लोगों को सस्पेंड करने का ऑर्डर निकाला गया है, लेकिन ये पूरी मालूमात मेरे पास नहीं है। कल तक सब मालूमात मिल जाएगी। मैं फिर विनती करता हूं कि आपने जो सॉलिडेरिटी बताई है, एक अपनी बहन के ऊपर जो अत्याचार हो गया है, देशवासियों ने इस तरह का उनके लिए अपना एक सहयोग बताया है, मैं आभारी हूं। यहां हम दोनों बैठे हैं, मैं और मेरे राज्य मंत्री, मेरे साथी, हम दोनों को भी 3-3 लड़कियां हैं। इनको भी 3 है, हमारे को भी 3 है, कोई लड़का नहीं है हमारे। हम तो बहुत चिंतित है इससे, कल कभी हमारे लड़की पर भी हो सकता है, इसलिए हम बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे नेता लोग इसमें बहुत जबरदस्त एक एक्शन लेने के लिए हमारे को सुझाव भी दिए हैं। हम सब तरीके के प्रयास करेंगे। एक मिनट, लेट्स गो वन बाय वन, प्लीज वेट फॉर मी कॉल। यस आपने कहा कि you government will ask for enhanced punishment. Does that mean that you will ask for the death penalty? Because that is something which the protesters out there at India Gate, all of them, almost to the last man, woman and child, have been demanding. This matter was also discussed in both the parliament houses, but it has to be discussed in details. It cannot be said at hand, and we'll have to see in what way it can be done, it can be enhanced. सर, विपक्ष ने मांग की है, सुषमा स्वराज ने प्राइम मिनिस्टर से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उसमें विचार करना चाहिए और फांसी का प्रावधान करना चाहिए इस मामले में। आपकी क्या राय है इसमें? विशेष सत्र बुलाने की अभी तो कोई मुझे जरूरी नहीं लगती है। कल ही हमारा सदन समाप्ति हो गई है। मैं समझता हूं कि सभी, आज सुबह भी मुझे श्री आडवाणी जी की और मेरी बात हो गई थी। मैं उनसे भी अपील किया हूं कि ये बच्चे सब और या सब देश के हमारे लोग यहाँ एक सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप भी विनती करिए, इस प्रकार की मैंने उनको भी विनती की थी सुबह। हम सब लोगों ने, विपक्ष के वगैरह, हम पार्टी के ऊपर आके एक समाज में ऐसे बदमाश लोग हैं, इनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करने के लिए सहयोग देना चाहिए, और हम सरकार की ओर से तो हम कर रहे हैं। सिंधु साहब, दिल्ली में जो समस्या है, ये भी कहा जा रहा है, इस समस्या की एक वजह यह है कि जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनका टेन्योर पूरा हो जाता है, उसके बावजूद भी वो 2 साल 3 साल यहीं रहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारे ऊपर 60 हम यहीं रहेंगे, इसकी वजह से वो निश्चिंत रहते हैं। तो क्या ऐसी कोई आप नीति बनाएंगे जिससे कि ये? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं अभी 4 महीने हो गया हूं यहाँ आके, मैं इसमें पूरी दखलंदाजी करूंगा, और मैंने ये आश्वासित करूंगा कि उनका पीरियड होने के बाद उन लोगों को यहाँ हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। शिंदे साहब, जो अभी आपने आश्वासन दिया है नुमाइंदों को, जो छात्रों के नुमाइंदे आपसे मिलने आए थे, वो जब वापस इंडिया गेट गए हैं, वहां पर जो एकत्रित लोग हैं, उन्होंने आपका आश्वासन मानने से मना कर दिया है। वे लोग कह रहे हैं कि ये लोग वहीं पर डटे रहेंगे। सरकार की अब क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अभी भी उनसे विनती करता हूं कि वो ये माने, सरकार पर विश्वास रखें, हम करेंगे, और ये करे बिना नहीं रहेंगे। सर, वो पुलिस वाले Shinde, I have a question for you. And one for Mr. Tiwari also. Today, your police at least more than 6 times used lathi charge, tear gas, and water cannons on peaceful protesters.
Do you think was this brutality was required? And second question is to Mr. Tiwari that massive protest was witnessed right on the seat of the park. What lesson, what message you have taken from this massive protest? ये सुबह जो हो गया है, हम भी इसके लिए इसमें बुरा लगा कि एक विशिष्ट काम के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन आपने भी देखा होगा जब बैरिकेड टूटने लगा तो उन्होंने किया है ऐसा, लेकिन इसमें भी मैं इंक्वायरी करने को लगा हूं। So, yesterday we heard of it. Sir, you have to repeat your question. You take by this massive protest right in front of seat of the park. देखिए, इसमें बुनियादी बात ये है कि खासकर जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं भारत के छात्र आंदोलन का, भारत के युवा आंदोलन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं। हमारे जो साथी सड़कों पे हैं, मैं उनकी वेदना, उनकी संवेदनशीलता, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश समझ सकता, पर मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूं कि सरकार ने जो उनकी बात है उस बात को संवेदनशीलता से सुना है और सरकार ने सिर्फ कार्रवाई करने का वायदा ही नहीं किया है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने आपके सामने, आपके समक्ष वो उन सारे कदमों का वेरवा दिया है जो सरकार उठाने जा रही है। तो उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है, बहुत घिनौनी वारदात हुई है, कोई सभ्य समाज उसको माफ नहीं कर सकता। पर हम आपसे विनती करना चाहते हैं, मैं वो बात दोहराना चाहता हूं जो गृह मंत्री जी ने कही थी कि सरकार ने आपकी बात सुनी है, पर ये हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है भारत का एक नागरिक होने के नाते कि हम जो अमन शांति है उसको बरकरार रखें, जो एक सौहार्द की भावना है उसको कायम रखें और इसमें जो एक रचनात्मक भूमिका हमारी बनती है उस रचनात्मक भूमिका को संवेदनशीलता से निभाएं। Sir, one question. Yesterday we heard a very strong defense from the Home Ministry for the Delhi police. What changed in 24 hours that today you are announcing that 4 to 5 police officers have been suspended? Did you not apply? Did the Home Ministry apply its mind yesterday? I had already told, not only yesterday, but the day you see I made statement in the House. The matter was under investigation. And I had instructed DC, the Commissioner of Police, those who are concerned particularly in that area, you should take action. And today, you see, they have come to the conclusion that there are some people who are responsible for this, that they have taken action. अजय सिंधे साहब, अब तक जो घटना देखी गई है, छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है, लेकिन क्या आप आश्वासन देंगे कि बड़े अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है? वो भी उस पर इंक्वायरी में आ जाएगा। ये तो इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगी, उसमें भी हम आगे पीछे नहीं देखेंगे और कोई भी बड़ा ऑफिसर होगा तो उसको स्पेयर नहीं करेंगे। Right, so my question is that the maximum punishment in a case of sexual assault is life. When you talk of enhancement, does that mean death? What is the innovation that the government doesn't want to talk about death penalty? It is a legal matter. That's why I say I do not want to say at this moment, you see, but we will have to examine it legally also, and then we can say that's why one should have a criminal, a deterrent act, deterrent punishment, and we will see that, you see, they will get a deterrent punishment. I think, if I may supplement, you need to read the Home Minister's statement carefully. People who understand jurisprudence know what the definition of the rarest of rare cases means. सर, एक होम सेक्रेटरी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सिंधे साहब ने बोला कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उसका डिटेल क्या है, किन किन अधिकारियों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है? और कल जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, 4 मिनट में वैन पहुंच गई,
कल आरपीएन सिंह साहब ने भी दौरा किया था, औचक निरीक्षण किया था बस से, होम मिनिस्टर से बात करने के बाद आपको भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि अभी भी लोगों में भरोसा कायम करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है, और जो पुलिसिंग का इंतजाम अभी किया गया है उसमें काफी कमियां हैं। क्या आपको इस बात का एहसास हुआ है? आरपीएन सिंह ने भी आपको ब्रीफ किया होगा, बात की होगी। मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि एक चीज है, पुलिस को हम उसके लिए कमेंट किया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि जो उन्होंने ये केस को हल किया, जल्द से जल्द 6 आरोपियों को पकड़ा। पर जैसे ही रहमत साहब ने कहा कि कल मैं बस में यात्रा किया था, इस चीज में मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने शिंदे साहब को भी इस चीज से बताया है कि बस में चलने पर हमें अभी बहुत काम करना है, जिससे महिलाओं को और दिल्ली की जनता को रात में चलने पर सुरक्षा महसूस हो। उस पर उन्होंने कहा है कि कदम उठाएंगे, और अवश्य आपको बताना चाहता हूँ हमारा मंत्रालय। Some other people are waiting. You've already had. I'll come back. I'll come. आपने सर बस में सफर किया, जो भी आपने देखा और समझा, क्या आप आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे? और 2008 में जो तत्कालीन दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे के पॉल, वो लिखित में ऑर्डर करके गए थे, लेकिन वो पुलिस ने कूड़े की टोकरी में डाल दिया उसे। तो आपको लगता है कि आपके सफर करने से कुछ सुधार होगा और आप आगे भी इसको जारी रखेंगे? मैंने पहले कल रात ही को कहा था कि मैंने जो बस में यात्रा की है, जब तक मैं इस मंत्रालय में हूँ, हर महीने इसमें यात्रा करते रहूंगा। इस घटना के लिए नहीं, परंतु जब तक इस मंत्रालय में अवश्य। सर, ये कहा गया है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पेनल्टी उम्र कैद से बढ़कर डेथ पेनल्टी हो जाती है, तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? कब तक सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये लोग जानना चाहते हैं। ये इसमें लॉ मिनिस्ट्री से इसमें लॉ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करना होगा, डिस्कशन करना होगा, और भी जो वरिष्ठ अधिकारी है लॉ के, उनसे कंसल्ट करना होगा, और फिर इसमें बताएंगे। सर, कितनी देर लग सकती है? प्रदर्शनकारी जानना चाहता है। देखिए, आप जो गृह मंत्री जी का बयान है जो आपको सर्कुलेट किया गया है, उसको अगर आप अभी आपको सर्कुलेट किया जाएगा, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ बहुत साफ तौर पे लिखा गया है। जब मैंने पहले इस बात का उल्लेख किया है कि जो कानून के जानकार हैं वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि जब इस परिभाषा का इस्तेमाल किया जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, तो उसका क्या अर्थ निकलता है। पर जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, मामला कानून से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको संसद के समक्ष भी जाना है, तो आज इससे ज्यादा और कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। पर मुझे लगता है कि जो व्यक्ति, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, जो कानून को जानते हैं वो इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। They were asking the same thing, एक्शन कब लोगे, क्या करोगे, कब ये डिटरेंट पनिशमेंट। मैंने बताया, उनको भी बताया, कोई छुपा के नहीं रखा, क्योंकि वो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जाके बताया उनसे यही विनती की कि आपके साथियों को बताएं कि सरकार आपके साथ है। सर, मेरा सवाल है कि आप पीएम से आपने 2 घंटे तक मुलाकात की है, सीएम ने किस तरीके का कंसर्न जताया है, और उसके बाद पीएम से आपसे 2 घंटे से तकरीबन मुलाकात की है, और सीएम का क्या कहना है, उन्होंने किस तरीके से कंसर्न? देखिए, जो बातें अंदर होती है वो बातें सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन पीएम हमारे सब नेता बहुत इससे कंसर्न है, दुखी है ये सब काम के इसके लिए, और उन्होंने एक बहुत गंभीरता से हमारे को सूचनाएं दी है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। सर, मीटिंग के अंदर एक बात ये पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी ने भी आपसे और प्राइम मिनिस्टर से बात की, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे, क्या वो जानना चाहते हैं? वही ये बहुत जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और जितनी भी कड़ी पनिशमेंट है वो देना चाहिए, इस तरह की बात। एक मिनट, somebody is waiting. Neetu, you had a question? Okay, so sir, question to Mr. Tiwari. Lot many people I know, and including me, we are not jurists. Why don't you tell us in plain common man's language what does rarest of rare mean? What is the government contemplating? I think the statement speaks for itself. I have explained the context of the statement very succinctly and very clearly. The Home Minister very correctly alluded to the fact
that when there is any amendment to the criminal law which is envisaged or which is proposed, there is a process which it has to go through. But the government has very clearly indicated its mind. When the statement is circulated to you and you peruse the statement, the meaning of what has been indicated in that statement would become self-speaking. My question, Mr. Akhil says, today Home Minister says that 4 or 5 people have been identified in the past who are going to be suspended or all the orders have been issued. So, the people who are agitating there want to know whether you have identified some escape boards or some senior officials are being punished for lack policing. The police commissioner has informed me that he's identified 5 police personnel who have been found to have had, to have made some lapses, etc., whom he is suspending, and I think the orders would have been passed or have been passed. What level of officers? I don't have the names as yet. I don't have the names as yet. Thank you very much. Thank you.